Assalamu alaikum, dear students. Today, in art and culture, we will study and discuss the idea of subculture. You probably know this concept from introduction courses, uh, subculture. And last time, I would link the discussion with the previous lecture. Last time, we discussed many shades, or you can say kinds of culture, in which we discussed high culture, folk culture, and we discussed popular culture and mass culture. We discussed these four terms. So related to that is the term subculture. Subculture is also part of the main culture, mainstream culture, you can say, yet distinguishable from it. Actually, modern societies are so complex and modern cultures are so complex that we can hardly talk of a homogeneous culture, or we can say a culture which is shared by all the people. So we have different clusters within the culture, different groups of people sharing the common norms and values, yet having a color of their own. So what do you think, what can be different subcultures in Pakistan? Let's discuss now today Pakistani society. So obviously the first criteria, there can be different ways of thinking about subculture. And here we will also discuss an important concept which we will explain in the we'll discuss later in the lectures, the concept of identity. There can be different ways to uh, have this concept of identity, and people uh, think of their own selves in a multiple ways, an individual as well as group. So group identity. So when we say that Pakistani people, for example, uh, uh, I mean, they have different ethnic uh, groups, and therefore they have their own, they have their distinct way of understanding themselves through their ethnicity. So Punjabi people, for example, and we can then say that Punjabi subculture, we can say Birochi subculture, Sindhi subculture, Pashtun subculture, and Gilgit-Baltistan or whatever, right? So there can be different ways of uh, this is just one way. And then what can be the other way? Class can be another way. So upper class, for example, has its own distinct subculture. Upper class of Sindh, upper class of Punjab, they, although I mean they have this Sindhi color, but then they will share something about the elite class, right? All the uh, upper classes of different ethnicities would share something which would constitute, make them one group. So the class, similarly, middle class have their own colors. They can be regarded as another subculture, and then other classes. So then there can be other ways. और कौन से जहन में आते हैं ऐसे? Can we say professions have different subcultures? It is difficult to say that professions have different subcultures. Doctors का मतलब कल्चर और सब कल्चर का कॉन्सेप्ट चूंकि ज्यादा डिटेल्ड है, although they share many things and they are a group, but not every group has is a category which can be regarded as subculture. जब ज्यादा कोई डिटेल्ड चीजें होंगी और ज्यादा चीजें वो कॉमन होंगी, फिर जाके वो एक सब ग्रुप बनेगा. बट इट्स डिबेटेबल, कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता. और इसी तरह फॉर एग्जांपल कास्ट जो है, क्या कास्ट की बेसिस पे हम सब कल्चर कह सकते हैं? Probably yes. Different castes, they share different things. I mean within themselves, a caste shares certain things. So सब कल्चर का जो आइडिया है, अब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर हमें डिफाइन करना हो कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, पाकिस्तानी कल्चर, तो what can be the meaning of this term पाकिस्तानी कल्चर? और फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बज़ाहिर आसान क्वेश्चन है, but actually it is very difficult, and we need a little bit rather very insightful understanding of history to understand this question, to understand the difficulty of this question.
what is the difficulty to define Pakistani culture? In the times when there was only one channel, PTV, whenever it has to show a Pakistani child, typical Pakistani child, they would bring four children: Punjabi child, Balochi child, Sindhi child, Pashtun child, and then other communities would claim that their child should also come. But Saraiki people would say that they are different from Punjab, the central Punjab, और पोठोहार के लोग भी कह सकते हैं. सो एक तो ये है कि एक पाकिस्तानी बच्चा बताना मुश्किल है. तो एक टिपिकल पाकिस्तानी बच्चा. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन इज. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी कल्चर जो है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तानी कल्चर? ये कब शुरू हुआ? मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहें कि पाकिस्तानी कल्चर जो है ये कब शुरू हुआ, व्हाट इज द कल्चर्स के शुरू होने की कोई क्या डेट हो सकती? आई एम पोजिंग दीज क्वेश्चंस टू यू. लेट्स डिस्कस दिस इन द ग्रुप. कैन वी से दैट कल्चर बिगिंस एट ए पर्टिकुलर टाइम? क्या यूं सोचा जा सकता है? पाकिस्तानी कल्चर जो है इसकी अगर हम कहें कि ये 1947 से शुरू हुआ, तो would it be correct to say that Pakistani culture started from 1947? Another answer can be that Pakistani culture began when Muslim influence started in subcontinent. क्या उस वक्त से हम पाकिस्तानी कल्चर को, क्या मुगल पीरियड से हम काउंट कर सकते हैं कि उस वक्त से जो कल्चर इवॉल्व हुआ उसको हम पाकिस्तानी कल्चर कह सकते हैं? क्या मुस्लिम इंडिया और उससे जो शुरू हुआ उससे पाकिस्तानी कल्चर बन सकता है? क्या पाकिस्तानी कल्चर को जो है हम बिगिनिंग जो पॉइंट है इसका वो हम कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से? क्या हम कनेक्ट करें अपने आप को मोहनजोदड़ो से और बहुत पहले की जो? फिर इंडियन कल्चर से हमारा क्या रिलेशनशिप है? थर्ड क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. डू वी शेयर सेम कल्चर? यहाँ का पंजाब मिसाल के तौर पे जो है और वहां का जो पंजाब है, क्या वो कल्चरली उन्हें कहा जा सकता है कि सेम है? रिलीजन्स डिफरेंट हैं, क्या कल्चर सेम है? फिर एक और क्वेश्चन जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उस पर तो हम थ्योरेटिकली भी बात करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर? अभी भी थोड़ी सी बात उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग करें डिस्कशन में. सो अब हम लेक्चर इस तरह से करेंगे कि कुछ डिस्कशन के लिए मैं क्वेश्चन रेज करूंगा और वो हम ग्रुप पे शेयर डिस्कस किया करेंगे, राइट? और उससे ही आपकी एक लिहाज से वैल्यूएशन भी होगी आपकी जो है कि कौन लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और लेकिन इसे इस तरह सीरियसली ना लीजिएगा कि अब आपने सवाल बड़ा सवाल करना है, लाजमी आपने करना है. सो इफ यू थिंक यू हैव ए क्वेश्चन, रेज इट. इफ यू थिंक यू हैव ए कमेंट, जस्ट पोस्ट इट, राइट? बट नेचुरल और ओरिजिनल रहते हुए हम सारी डिस्कशन करेंगे. और सो दीज आर द क्वेश्चंस कि पाकिस्तानी कल्चर के सब कल्चर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए. तो पाकिस्तानी कल्चर का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो अभी बन चुका है? क्या वो प्रोसेस में है पाकिस्तानी कल्चर? क्या हम ये कह सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड अ पाकिस्तानी कल्चर विच विल बी क्रिएटेड इन द फ्यूचर? और या ये कह सकते हैं कि अभी भी कुछ उसके शेड्स एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे जो एक बड़ा क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा वो ये है, जो आना चाहिए वो ये कि पाकिस्तान जो है वो एक नेशन स्टेट का नाम है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेशन स्टेट एंड कल्चर? क्या जरूरी है कि एक नेशन स्टेट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म? सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें सोचने चाहिए. तो नेशन स्टेट का क्या रिलेशनशिप है कल्चर के साथ? सो तीन डिफरेंट चीजें होंगी. रिलीजन का क्या रिलेशनशिप है कल्चर के साथ, और नेशन स्टेट का क्या रिलेशनशिप है कल्चर के साथ, और तीसरा ये है कि सब कल्चर जो हैं जो डिफरेंट शेड्स हैं उसके, वो क्या पर्टिकुलरली पाकिस्तान के एंगल से जब हम बात करें तो पाकिस्तानी कल्चर जो है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अगर करता है तो उसकी क्या फॉर्म है, कौन उसकी क्या डेफिनेशन हम कर सकते हैं, किस तरह उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कब से शुरू हुआ वो? और ये कब से शुरू वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खासा. हमारा क्या रिलेशनशिप है फॉर एग्जांपल इंडिया के कल्चर के साथ? हमारा क्या रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के कल्चर के साथ? जो इलाके फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के हैं या केपी के हैं एंड दे शेयर मैनी थिंग्स विद अफगानिस्तान, अफगान कल्चर, पश्तून सोसाइटी. सो क्या वो कल्चर में वहाँ के ज्यादा करीब नहीं है? सो ये वो क्वेश्चंस है जिनको मैं चाह रहा हूँ कि हम ग्रुप में डिस्कशन करें और लेट्स सी कि डिस्कशन से हम फिर आगे कैसे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच.